Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your teacher Nazia and today we are going to start with our another chapter, that is there is the key of the kingdom. So this is a beautiful poem from class 3. In this poem, the poet takes us on a small journey from the biggest thing to the smallest and the smallest to the biggest. He starts with the key to the kingdom and ends with the key to the kingdom. This is a fun poem meant for children to read aloud and enjoy. So let's look at the poem. There is the key of the kingdom. In that kingdom there is a city. In that city there is a town. In that town there is a street. In that street there is a land. In that land there is a yard. In that yard there is a house. In that house there is a room. In that room there is a bed. On that bed there is a basket. In that basket there are some flowers. Flowers in the basket, basket on the bed, bed in the room, room in the house, house in the yard, yard in the land, land in the street, street in the town, town in the city, city in the kingdom, and this is the key of the kingdom. Let's try to understand it. Now repeat again. But this time we will try to understand it with meanings. There is the key of the kingdom. Kingdom means Rajya and key means Kuji. You can take it as a chabi. In that kingdom there is a city. Kingdom means Rajya and city means Nagar. You can take शहर. शहर भी बोल सकते हैं. In that city there is a town. Your town means कस्बा. और इसे शहर भी बोल सकते हैं जहाँ बेसिकली बहुत सारे घर होते हैं. In that town there is a street. Street means गली. In that street there is a lane. Lane means भी गली होता है. Lane और street दोनों एक ही है, मतलब जाने का रास्ता. In that lane there is a yard. Yard means आंगन, जो घर के बाहर होता है. In that yard there is a house. House means घर, यानी आंगन के अंदर घर. In that house there is a room. Room means कमरा, जो घरों में होते हैं, हर घर में होता है. In that room there is a bed. Bed means of course जिस पे हम सोते हैं. On that bed there is a basket. Basket means टोकरी, जिसमें हम कोई भी चीज़ रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्लावर्स, फ्रूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. In that basket there are some flowers. Flowers means I know everyone knows. Now reverse this poem. Means till now we were coming from big to small. Now we will go from small to big. See, we have opened the box. If you want to tie it with the key, then let's go back. चले? Flowers in the basket. Basket means सबको पता है, और flowers क्या है? Basket के अंदर है. Basket on the bed. अब basket कहाँ है? Bed के ऊपर है. Bed in the room. और बेड कहाँ है? रूम के अंदर है. रूम इन द हाउस. रूम इन द हाउस मीन्स रूम कहाँ है? घर के अंदर है. हाउस इन द यार्ड. हाउस इन द यार्ड मीन्स हाउस कहाँ है? यार्ड के अंदर, यानी आंगन के अंदर है. यार्ड इन द लैंड. अब आंगन कहाँ है? रास्ते में है, यानी गली में. लेन इन द स्ट्रीट. अब गली कहाँ है? एक गली है, उसी में एक और गली है. स्ट्रीट इन द टाउन. अब स्ट्रीट कहाँ है? कस्बे में है, यानी के टाउन में. टाउन इन द सिटी. अब कस्बा कहाँ है? कहाँ है? शहर में है,
सिटी मीन्स शहर, सिटी इन द किंगडम। और अब सिटी कहाँ है, शहर कहाँ है, राज्य में यानी किंगडम में। एंड दिस इज द की ऑफ द किंगडम, और ये क्या है, इस किंगडम की चाबी है यानी कुंजी। सो टेल मी, how do you like this poem? Now let us quickly come to its question and answers. Question number 1. List all the things mentioned in the poem in 2 ways. यहाँ पे क्या कहा गया है कि लिस्ट बनानी है, जो भी पोएम में मेंशन किया हुआ है उसकी 2 वेज में यानी 2 वेज में। क्वेश्चन नंबर ए, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, इसका आंसर क्या होगा, यानी छोटे से बड़ा करना है तो आंसर क्या होगा इसमें, फ्लावर्स टू द बास्केट, बास्केट टू द बेड, बेड टू द रूम, रूम टू द हाउस, हाउस टू द यार्ड, यार्ड टू द लैंड, लैंड टू द स्ट्रीट, स्ट्रीट टू द टाउन, टाउन टू द सिटी एंड सिटी टू द किंगडम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे हमें बड़े से छोटे में जाना है तो आंसर क्या होगा, किंगडम टू द सिटी, टाउन, स्ट्रीट, लैंड, यार्ड, हाउस, रूम, बेड, basket and at the last flowers. Okay, question number 2. Put the following chants in the proper order. You may start from the smallest or the biggest. ये हमारे ऊपर चॉइस है, हम इसे या तो स्मॉल से बिगेस्ट पे भी शुरू कर सकते हैं या फिर बिगेस्ट से स्मॉल पे भी। तो क्वेश्चन क्या है, शर्ट, कार, मैन, पॉकेट, हाईवे, पेन। हमें इसे छोटे से बड़ा है तो बड़े से छोटा करना है, तो मैंने यहाँ पर बड़े से छोटा किया है। ठीक है, आंसर क्या है, हाईवे, कार, मैन, शर्ट, पॉकेट, पेन। इसी तरह से हमें बाकी भी देखने हैं। अब बाकी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सीड्स, कंटेनर, हाउस, किचन, ड्राइड चिली। और इसका आंसर क्या होगा, हाउस, किचन, कंटेनर, ड्राइड चिली, सीड्स। वैसे ये ज़्यादा मज़ेदार है, अगर हम छोटे से बड़ा करने जाएंगे तो इतना फन नहीं होगा। चलिए आपके ऊपर है, आप इसको छोटे से बड़ा भी कर सकते हैं, बड़े से छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बड़े से छोटा किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, लेटर, वर्ड्स, बुक शॉप, स्टोरी, स्टोरी बुक, पैराग्राफ, सेंटेंस। इसका आंसर क्या होगा, बुक शॉप, स्टोरी बुक, स्टोरी, पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड, लेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टेल, हेयर, माउंटेन, केव, बियर। आंसर, माउंटेन, केव, बियर, टेल, हेयर। अब लास्ट, grain of corn, field, plant, stalk, ear of corn। आंसर क्या होगा, field, plant, stalk, ear of corn, grain of corn। मज़ेदार था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड राइट अदर वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड। हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन सही से रीड करते हुए जो वर्ड दिया है उससे रिलेटेड दूसरा वर्ड लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किंगडम, राइट अदर वर्ड्स दैट बिगिन विद के। यहाँ ऑलरेडी वो दिया हुआ है किंगडम, लेकिन ये के से स्टार्ट है, तो इसने कहा है कि आपको के से ही दूसरा वर्ड ढूंढना है। तो इसका आंसर क्या होगा, किंगडम, नाइट, किंग, की, काइंड, काइंडनेस, किचन, काइट, किटन, नाइफ, नॉक। जितने भी कैसे वर्ड्स आते हैं हमने वो लिख दिए, आगे आपके ऊपर है और लिख सकते हैं। फाइन, अब है क्वेश्चन नंबर 2, सिटी, लिस्ट द ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इन अ सिटी एटलीस्ट 10। हमें क्या करना है, हमारे सिटी में जितने भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड पीपल हमें वो लिखनी है। अब ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं, मतलब अलग अलग काम करने का तरीका, जैसे डॉक्टर, टीचर एंड ऑल दैट। तो इसका आंसर क्या होगा, सिटी, टीचर, डॉक्टर, फायर फाइटर, स्वीपर, बॉसर, केमिस्ट, ड्राइवर, कंडक्टर, सेल्समैन, इंजीनियर। ये सब क्या है, ऑक्यूपेशंस है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टाउन, list the different kinds of buildings that we see in a town, examples, library, hospital। अब हमें क्या करना है, दूसरे बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं जो हम टाउन में देखते हैं, जैसे कि ऑफिसेस, होम्स, स्कूल्स, चर्चेस, टेम्पल्स, थिएटर्स, बैंक्स, बस,
स्टेशंस, ये सब टाउन में अवेलेबल है। नंबर 4, स्ट्रीट। राइट अदर वर्ड्स विथ अ सिमिलर मीनिंग। हमें स्ट्रीट से रिलेटेड दूसरे वर्ड लिखने हैं, यानी कि मीनिंग सेम होना चाहिए। स्ट्रीट यानी रास्ता, तो सारे रास्ते ही होने चाहिए, जैसे कि लेन, रोड, पाथ, ड्राइव, एवेन्यू। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्या है? लेन। राइट अ फ्यू रियल और इमेजिनरी नेम्स ऑफ लेन्स, फॉर एग्जाम्पल पार्क लेन। अब हमें रास्ते से रिलेटेड स्ट्रीट और लेन दोनों का मतलब तो एक ही है। खैर, हमें लेन से रिलेटेड दूसरे इमेजिनरी नेम्स लिखने हैं, कुछ सही और कुछ इमेजिनरी। तो गुलमोहर लेन, स्पाइस लेन, गुल मंदिर लेन, क्रैकर्स लेन, स्क्रैप मेटल लेन। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यार्ड। मेंशन डिफरेंट लोकेशंस फॉर द यार्ड ऑफ अ हाउस, फॉर एग्जांपल ऑन ऑल साइड्स, टू द लेफ्ट, एक्सेट्रा। अब हमें क्या है? यार्ड की डिफरेंट लोकेशन को बताना है। यार्ड मीन्स आंगन, तो अब आंगन की डिफरेंट लोकेशंस क्या होगी? ऑन ऑल साइड्स मतलब पहले तो सारी साइड्स, ओनली इन फ्रंट मतलब सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ, ओनली एट बैक मतलब सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ, ऑन द लेफ़्ट, और अब लेफ़्ट ऑन द राइट यानी राइट जो बच गई थी, तो हमने साइड इसकी बता दी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाउस। लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स यू फाइंड इन एवरी हाउस। अब इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है? घर में आपको वो सभी चीज़ें लिखनी है जो घर के अंदर मौजूद होती है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टेबल, चेयर, कबर्ड, बेड, लाइट्स, टेलीविज़न, एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 8, रूम। राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? घर के अंदर जितने रूम्स होते हैं उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, हॉल, बाथरूम। क्वेश्चन नंबर 9, बेड। Make meaningful words by joining this word to the words given here. Bug, room, cover, sheet, river, time, flower. बैट से रिलेटेड हमें क्या यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर हमें एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, जो वर्ड्स दिए हैं उन्हें जॉइन करके। तो चलिए देखते कौन से मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। बेड, बग, बेड रूम, बेड कवर, बेड शीट, रिवर, बेड टाइम, फ्लावर, बेड। सब में बेड ऐड करना था। क्वेश्चन नंबर 10, बास्केट। लिस्ट द थिंग्स यू कैन पुट इन अ बास्केट। यहाँ पर हमें उन चीज़ों की लिस्ट बनाने के लिए कहा है जो हम बास्केट के अंदर डालते हैं। चलिए देखते हैं कि हम क्या है जो बास्केट के अंदर डालते हैं। फ्रूट्स, फ्लावर्स, vegetables, groceries, books, toys. Question number 11, flowers. Write the names of different kinds of flowers. यहाँ पर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स के नाम लिखना है, मतलब अलग अलग तरह के फ्लावर्स। कौन से हैं वो? रोज़, सनफ्लावर, लिली, मैरीगोल्ड, जीनिया, मोगरा, चमेली। If you want, you may add more words to the above list. Question number 4. Using your imagination, make similar chains of 3 to 5 related things and list them according to their size. Write where each of the things can be found. यहाँ हमें कहा गया है कि अपनी इमेजिनरी से और अपनी इमेजिन से हम और चैन बनाए कोई भी वर्ड लेकर। तो स्टूडेंट्स को ये वर्क दिया है, तो देखिए इसमें क्या है। यू कैन डिस्कस दिस इन ग्रुप। आप इसको ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो कि आपको कौन सी चैन किससे रिलेटेड बनानी है। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, स्कूल, योर होम्स, योर स्पोर्ट्स ग्रुप्स, योर ट्रैवलिंग एक्सेट्रा, whatever you like. So kids, this lovely poem ends here. I hope you guys understand this poem. If you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel so that I can bring more education related videos. Thanks for watching.